ले जी बॉर्डर 2 फिल्म आ रही है काफ़ी सालों के बाद, पता नहीं कि पहले कब आई थी, लेकिन काफ़ी सालों के बाद आ रही है। तो उसका टीजर आया, चेक्स करते हैं जी। मुझे मेन इसमें अच्छा लग रहा है कि दिलजीत आया। पहले भी एक कैरेक्टर था, लेकिन वो पता नहीं किसने किया तुम था। जहां से भी घुसने की कोशिश करोगे, आसमान से, जमीन से, समुंदर से, सामने एक हिंदुस्तानी फौजी खड़ा पाओगे। जो आंखों में आंखें डालकर सीना ठोक कर कहेगा, हिम्मत है तो आ, ये खड़ा है हिंदुस्तान। आवाज कहां तक जानी चाहिए? ये बता रही हुआ, ये पहली वाली मूवी था। कहां तक? कहां तक? कहां तक? आवाज आनी चाहिए लाहौर तक। अच्छा इस बात की वजह से मुझे समझ इसलिए नहीं आई क्योंकि ये क्या लाहौर को ग्वादर के पास समझते हैं कि आवाज आनी चाहिए। ये तो अगर छींक भी मारे तो लाहौर तक आवाज आ जाएगी। इतना करीब तो लाहौर है, सबसे पहले आता ही लाहौर है? रोज सुबह जो परिंदे उड़ते हैं हाँ। वो अमृतसर भी जाते हैं, लाहौर भी आते हैं। यही तो बात समझ नहीं है। जो लाहौर तक बारिश के कतरे गिरते हैं वो लाहौर में भी पड़ते हैं, अमृतसर नहीं, में हैरत पड़ते मुझे हैं। इस सेंस में जो हुई है। सूरज की पहली किरणें उतरती है वो एक ही टाइम पे लाहौर और अमृतसर में पड़ी होती है। तो एड्डी आवाज पहुंचा दी तनु की जरूरत है नहीं बाजी। जो सबसे अच्छा, अजीब मुझे लगा एक तो मुझे बात ये लगी है इस फिल्म को देख के, अभी कहते हैं देखी नहीं हमने नहीं फिल्म। नहीं, हाँ, वही जो टीजर जो हाँ। उससे सारा अंदाजा तो होनी हो तो गया यही है ना। फिल्म। सारा अंदाजा तो हो गया, सारा जो कुछ उसका लब्बे लबाब जो होगा उनका जो मकसद है। एक मकसद तो ये लगता है फिल्म बनाने वालों का कि वो चूंकि सिखों के बहुत अच्छे ताल्लुकात है पाकिस्तान के साथ, तो वो सिखों को जलील करना चाहते हैं। शायद उन्होंने सारे कैरेक्टर जो लिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ आज़म आजमाने के लिए, वो सारे सरदार के हैं। सोनम बाजवा भी सिख नहीं है, दिलजीत भी सिख है, वो जो सनी देओल भी कहीं ना कहीं सिख है। सनी देओल की अगर प्रकाश कौर का बेटा है और धर्म सिंह का बेटा तो वो भी सिख है। ठीक है ना। तो लाहौर तक आवाज़ पहुंचाना, बेटा जी लाहौर तुहाडे गुरुआं दी धरती है, ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਹੈਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋਈ ਸਰਦਾਰ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਖੀਆਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੈਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਥਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹੋ। ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਅ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੈਂ
ਇਹ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ। ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲਾਹੌਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫਪੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਫਪੁਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਹੈ। ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਨੀਂਹ ਇੱਟ ਰੱਖੀ ਸੀ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਦਫਨ ਹੋਏ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲਜੀਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਬੈਨ ਕਰਾ ਲਈ ਪਹਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ, ਦਿਲਜੀਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ 1984 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ 1984 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ 1984 'ਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਿੰਡਰਿਆਂਵਾਲਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਸੂਸ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡੋ, ਪਿਆਰ ਵੰਡੋ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਸਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਫੈਲਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦਿਓ। ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਵੱਖ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਵੱਖ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲਕੀਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਨੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾ ਹੀ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਚੰਗਾ। ਔਰ ख़ास तौर 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ तो उदों बहुत ही चंगा नहीं लगता, अफसोस होता है। मुझे तो एक बार इसलिए हैरत हो रही है ये सारी चीज़ की कि चलो पेशौर तक आवाज़ का अगर हो ना तो वो मुहावरा फिर भी कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है कि वो कि दूर है हाँ। कि पेशौर तक वहाँ तक। अब लाहौर तक आवाज़ कोयटा तक पहुंचाओ। हाँ कोयटा तक पहुंचा, इसलिए मैंने सबसे पहली बात की कि ये लाहौर को ग्वादर ले गए हाँ वही कि वहाँ तक जाना कि इतना क्रॉस तो ही नहीं कि आप पूरा कंट्री आपने किया और वहाँ तक आवाज़ गई इतनी दूर तक। हाँ, हाँ। अब मसला ये हो गया वह इनके साथ कि इनकी खुद खुशी वाली जो किस्मत है ना इनकी कि जो करते हैं वो उल्टा इन पे पड़ जाता है। अब ये जब आए थे, जब करतारपुर राहदारी खोली इमरान खान ने और हम वहाँ नवजोत सिंह आए सरदार, उसके लिए उसकी वो हुई थी तकरीब रूनुमाई या जो भी उसको कहते हैं, तो उसमें ये आए थे। तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा शख्स उस पूरी महफिल में ये थे, और इनके चेहरे पे 12 बजे हुए थे उस टाइम पे। असली के 12 बजे असली के 12 बजे हुए थे, और सब लोग उनको मतलब कोई किसी ने इनको मुंह नहीं लगाया था। तो वो चाहते हैं कि किसी तरह किसी को पता चले मैं भी है, मैं भी है। वैसे भी जब वो शोला कोई बुझने लगता है ना तो वो भड़कता है। तो अब इनकी उम्र भी हो गई है, जाहिर है अब वो कोई फिल्मों में काम भी नहीं मिल रहा, तो कुछ ना कुछ तो करना ही है ना उन्होंने। वो नहीं है, वो जो मैसेज है ना वो एक्सपेक्ट ये कर रहे होते हैं इनसे कि इसी तरह का वो रोल करें। उनको शायद हो सकता है पर्सनली शायद पसंद भी ना हो, वो कोई और चीज़ भी करना चाहते हो, कोई और जॉनर भी इनके ट्राई करना चाहते हो, किसी और तरह की एक्टिंग रोल कोई या तो उनको मिलते नहीं है, या फिर उस तरह की चीज़ वो एक होता है ना कि आपको छाप बन जाती है तो फिर आप उसी में रह जाते हैं। लेकिन मेरा जो मकसद कहने का वो ये कि जिस तरह पिछले दिनों भी इन्होंने ये एक कोशिश की वो जो धुरंधर बनाई और वो बैकफायर इस तरह से हो गई कि उन्होंने कोशिश किया था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनाई जाए, लेकिन पाकिस्तान ज़्यादा नुमायाँ हो गया, वो कैरेक्टर हावी हो गया, उनके अपने जो
भेजे गए थे वो जो ਰਿਮਾਂਡ ਕੇ ਤੀ ਹੀਰੋ ਬਣ ਗਿਆ ਭਾਈ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ये ਲਾਹੌਰ पिछले ਕਰ- कुछ अरसे से ना इनकी जो ਲਾਹੌਰ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੈਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰੀ ਜਾ हाँ, ਰਿਹਾ वो चीज़ ਲਾਹੌਰ मुझे ਲਾਹੌਰੇ इसलिए अजीब लगी हाँ जी और हैरत भी ये हुई कि शायद इनकी किस्मत इस टाइम पे ऐसी चल रही है कि जो जो चीज़ें भी ये कर रहे हैं वो उनके खिलाफ उल्टी पड़ रही हैं कि अब ये जो ये बात की है उन्होंने ये तो पाकिस्तान वालों को कहना चाहिए कि उधर जाके जब उनको तुम मारोगे ना तो जहाँ जहाँ भी मारोगे तो लाहौर तक उनकी चीखों की आवाज़ आनी चाहिए। आप ही देखें वो इनके भाई का बॉबी देओल का पूरा कैरियर खत्म हो चुका था, एक मुसलमान कैरेक्टर छोटा सा किया तो वो इतना मशहूर हो गए, उसकी वजह से दोबारा से जिंदगी आ गई उनमें, दोबारा से एक इंडस्ट्री में उनका वो शक्ल नजर आनी शुरू हो गई, लोगों को पहचान बन गई कि भाई ये भी है। तो बिना बोले आप भी कोई अच्छा कैरेक्टर कर ले कभी, ताकि मरते वक्त और मरते दम तक या उसके बाद भी आपको जो है वो कोई अच्छे नामों से कोई याद करे। आप अपने गुरुओं की धरती के लिए नफरत फैला रहे हो यार, ये क्या बात है, समझ नहीं आती है आप लोगों की। बहरहाल नफरत तो कहीं भी नहीं होनी चाहिए, किसी भी जगह नहीं होनी चाहिए। हम इंसानियत के वो अलंबरदार हैं, हम सब इंसानों को इक्वल समझते हैं, सबको सबका इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं, सबके जिन जिन को वो मानते हैं उनकी भी इज़्ज़त और एहतराम करते हैं। हमारे लिए सब लोग जो हैं बायस से इज़्ज़त है, सब लोग जो है, और हम सबसे प्यार करते हैं। हमें उन लोगों से भी प्यार है जो उस लकीर के उस तरफ रहते हैं, हमें उनसे भी प्यार है जो लकीर के इस तरफ रहते हैं। इसलिए इस तरह की फिल्में जो है वो हमें अच्छी नहीं लगती, इस तरह की डायलॉग अच्छे नहीं लगते। भाई लाहौर तक आवाज़ पहुँचानी, कोई प्यार की आवाज़ भेजो, कोई मोहब्बत की आवाज़ भेजो, है तुम कोई अपने गुरुओं को सलाम ही भेज दो, लोग नहीं अच्छे लगते, धरती नहीं अच्छी लगती, वहाँ से कोई सलाम भेजो, गुरु नानक जी को सलाम भेज दो, गुरु अर्जन सिंह जी को सलाम भेज दो, अपने रंजीत सिंह को महाराजा को सलाम भेज दो, वो सारे इधर ही है। नहीं तो लाहौर से भी आवाज़ आएगी, चाय बन गई आ जाओ। नहीं हम तो फिर भी प्यार हमारे इधर से जब भी गया प्यार बांटने गए हैं। हमने जलियांवाला बाग में भी शहीद हुए हैं हमारे बड़े, और गोल्डन टेम्पल जो आपका कब है उसका नींव पत्थर ही हमारे बड़ों ने रखा है, वो मियाँ मीर साहब ने रखा है। आप मियाँ मीर साहब को चैलेंज करते हो वहाँ बैठ के, वाह जी वाह, आवाज़ भेजो, मियाँ मीर साहब ने सुन ली है आपकी आवाज़। हाँ लो जी, देखें, बाकी अपनी अपनी सारे राय दें। होती है मुलाकात अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में रखें, रब रख। अल्लाह हाफ़िज़।